Yes, so good evening, everyone. So, we are just about to complete the secret book in a few more sessions. And yesterday, we started to talk about the secret to you, okay? The secret to us, about how we are the creators, we are the directors of our life. Whatever we have achieved or whatever we have created till now, whether it was good or bad, was totally our creation, okay? And I don't know why my sofa is dancing in the background. Oh, no, it's okay. Yeah. So we talked about that. We tried to understand what the secret to us is. Yeah. And we'll talk much more about it so that we understand how we change our life. Okay. And how we use this law of attraction and integrate everything that we learned in this book and try and implement it in our lives. Okay. So, any questions about what we have read or any sharing? Or should we start and keep it for the end? Hmm? Anyone? Hmm? Okay. So, yes. So, please unmute yourself, switch on your cameras, and let's do the 10 little fingers. Yeah. Yes, Kushi, you've been attending the sessions or listening to the recordings or reading the book? Yes, ma'am, I am listening to the recordings. Okay. Yes. Ma'am, basically, the thing is that it's a little complicated. This actually, I have this one, it's my ultimate dream, Hmm. and that's all I want. But the thing is, I don't have any contacts or any, I don't know how do I achieve it or how do I accomplish it Hmm. because it's a big time thing. Hmm. So that is why I don't really know. So I just basically want to know that how do I get clues and Hmm. that how should I fulfill it? See, Kushi, first thing, we are not going to fulfill it, okay? The universe is going to do it for us. Yes. If you are only saying it's a big time thing, means you are only thinking that it is unachievable, it is difficult for you to get it, right? So, first, you have to take that out of your mind that it is a big time thing, okay? Hmm. You have to, like, whole book has been talking about that only, that you have to be in a good feeling zone about that. When you're talking about that, when you're thinking about that, you have to be in a good zone, okay? Only then you will attract it. The whole Hmm. book has been telling us that you have to be in a good feeling zone. You have to just believe that you have got it, okay? You have achieved it. And if you're only talking, thinking positive about it, if you're in the correct frequency, okay, correct frequency, in the sense, like, if you are feeling positive about it, you are feeling your gratitude for receiving it, then only you will attract that. So this is Okay. what we have to do. Then whether it's a big time thing or it's a small thing, that's totally on universe, okay? It's totally on the Okay. universe whether we get it or not, okay? Yeah. So Like 90% of the times I'm just thinking how is this gonna happen? no, that is a wrong thing. We are not to think about how, shuru Hmm. say the book has been, Rhonda Byrne has been telling us, how is not our concern. Yes. Do you think when Okay. you order on Amazon or on Swiggy also, do you think Hmm. कहाँ से वो बंदा आ रहा है, कैसे वो पैक करेगा, वो पार्सल कहाँ से आ रहा है, डिलीवरी पर्सन कौन है? You don't think about all that, ना? Do you? You are No. just concerned or just happy about the end product, that you have got Hmm. it and you are enjoying it, what you will do with it, whether it will fit you or not. You are just thinking Yeah. about, yeah. So that is what we have to do. We are only to think that we have got it, okay? Because how it has to be done is decided by the universe. It has Hmm. taken care by the universe, okay? It's just as simple as, like, placing an order in a restaurant also, Hmm. right? You just go there, you order the food. Do you think from where are they buying the veggies, from where have they bought the paneer, from which, who's the chef? We are not even bothered about that, right? Hmm. So just like that we have to do. I know it is a little challenging, but that is an effort, and since we do it every day, yeah, that is how we have to do the universe also. We can trust a small chef, okay, who we don't even Yeah. know has washed his or her hands, right? So why Hmm. can't we trust the ultimate power? Yeah, so we have to trust that. We have to have that belief and faith that Hmm. yes, whatever we have asked, we will get it. Okay. So I whether I deserve to get that or not, even That that is also, we also no, we don't have to think whether we deserve or not is totally dependent on how many how many gratitude. blessings we are doing. Okay, that is what is deciding.
Okay, that is the deciding factor. How much are you in the positive zone? How much you are above the line? That is the deciding factor. That is the thing which decides. Hello. Also another chapter. Yeah. Ma'am, your voice was cutting. I couldn't hear you. Sorry. Just 1 second. Let me try this. Yeah. Is this better? Yeah, it's fine now. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Okay. So you've understood. We have to just Yes. focus on our gratitudes, on our blessings, and on staying in the good, positive zone. That is our only concern. That is how the universe will see whether we deserve it or not. Okay. Hmm. So only focus should be that how much gratitude you are doing, how much above the line you are. That is the only thing that you have to worry about. But Okay. I have to work for it also, right? No, what you will do is when you are in the positive zone, when you are in the happy state of mind, okay, you will automatically do. Okay. Okay. And the opportunities will keep coming to you. You know, you will get the Hmm. links, you will get how Rhonda started off in the beginning of this book. Okay. That when she was in the positive zone, when she was, confirmed that she will, get this book to millions of people, how Hmm. the teachers kept coming to her, how magnetically she attracted them in her life. That is how we will do. Of course, we'll have to work. अगर हमको भूख लगी है और खाना सामने आ गया है, वो उड़ के हमारे मुंह में नहीं जाएगा, वो Hmm. हमको ही उठा के खाना पड़ेगा, right? So that is Yeah. what we'll have to do. Okay, if you want to go to Vaishno Devi or if you want to go to a holiday, you will Hmm. have to go. Yeah, जैसे हम लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुआं क्या होता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, राइट? कुआं हमको दिख जाएगा, लेकिन जाना तो हमको ही पड़ेगा। पहुंच भी जाएंगे तो पीना तो हमको ही पड़ेगा, राइट? Hmm. कोई अगर हमारे मुंह तक ग्लास भी लेके आएगा तो मुंह खोल के पानी तो हमको ही पीना पड़ेगा। आई थिंक अगेन द नेटवर्क इज राइट, नेटवर्क इज डूइंग सम challenges, ना? But I can hear you. Your video is paused, but I can hear you. Okay. Yeah. Hmm. Okay. So you've understood. We have to make that effort. वो जो effort आप बोल रहे हो वो हमको करना ही पड़ेगा। Hmm. रास्ता easy हो जाएगा। Remember that car वाला photograph? Yes, yes. वो तो हमको चलना ही पड़ेगा। अब वो कार मिलती है या हमको मे बी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। I have to put in the helicopter icon also in that picture. Okay? Hmm. Yes. हाँ, तो वो हमको करना ही पड़ेगा। बट अब कितना जल्दी हमको वो रास्ता क्लियर मिल जाता है, कैसे हम पहुंच जाते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रैटिट्यूड एंड आवर फीलिंग जोन। ओके। Yeah. That was exactly my point. That how do I just like go about it if I just get any clue Don't have or to any. don't have to think, Kushi. See, if you want you can read that Jack Canfield वाला example. Hmm. Till the end of that month, okay, he had no clue कहाँ से उनको वो कितने रुपए थे, वो $100,000 ना, 100 कहाँ से आएंगे, million. he had no clue. Yeah, Hmm. 100, I think 100,000 था first वाला, second The वाला was 1 the million. one he wrote the Yeah. check and he had put it on the ceiling. Yes, Yes. yes. If you read that story, I think till the after 3 weeks he got to, the idea clicked to him. Okay, and Hmm. then he spoke to the journalist. But उसके पहले तो he did not give up hope. हाँ, फिर Hmm. जब वो opportunity दिखी, so he had to take the step. Yeah. So ultimate step we have to take, but the roads will be clearer for us. The opportunity will be there, and we will have to act fast. Okay, Hmm. you got it? Yeah. Yeah, okay. So if you feel like you should read that chapter again, that how he did it. When we are reading about such stories or about such real life things, then we get inspired. अरे ये मैंने नहीं किया है, ये belief मेरे में कम है, ये faith Hmm. मेरे में कम है, and that will, I think, inspire you and motivate you a little more. Okay? Okay. 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 Thank you. Thank you. Yeah. So I think let's start with the 10 little fingers, and we will do the reading, and then we'll take some sharings and questions after the reading. Okay. So please unmute yourself, switch on your camera, and let's do the 10 little fingers. Okay. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 fingers, little fingers, 10 10 little little toes, 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 2 2 little little 2 ears, ears, and 1 little nose. 10 little 10 fingers, little fingers, 10 10 little little toes, toes, 2 2 little ears, little and ears, 1 and 1 little nose. little nose. Yes, wonderful. So who wants to read today? Should I read today? Yes, who was that? Shweta, na? Or
Shweta, you I'm read. Alka. I'm Alka. Alka ji, can Shweta read? You have read a few times, and Shweta also just No raise her worries, hand. no worries. Yes, yes. Anything is fine. I'll Oh, read. yes, yes. Let me just. Yeah. So we stopped here. Divine mind is the one and only reality. We read that our mind, like first we read that everything is an energy. Everything. What we want is an energy. What we are is an energy, and energy is always vibrating. Okay. That is how we change our feelings, we change our frequency, and we attract whatever we want if that is also on the same frequency. Okay. So we read that, and we also read that everything is possible in this world, everything, whatever we want. If we have been thinking bad thoughts, of course वो तो हुआ ही था. अब अगर हम लोग हमारा thought change कर लेते हैं, we start focusing on what we actually want, even that is possible. Yeah. Yes. Hmm. We are all connected. Hmm. We just don't see it. There is not an out there and an in here. Everything in the universe is connected. It is just one energy field. Hmm. So, whichever way you look at it, the result is still the same. We are one. We are all connected and we are all part of the one energy field, or the one supreme mind, or the one consciousness, or the one creative source. Call it whatever you want, but we are all one. Yes. So it's like everything is one. It's like आपने सुना ये कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, एंड दैट इज आर अल्टीमेट व्हाट इज कॉल्ड डेस्टिनी. हमारे कल्चर में तो हमने ये सुना ही है ना कि अंत में जाके हमको परमात्मा से ही मिलना है. तो इसके पहले हमको लगता था ऐसे कैसे मिलना है जाके, बिफोर आई रेड अबाउट दिस बुक, ओके, अबाउट दिस इन दिस बुक, उसके पहले मेरे को नहीं समझ में आता था कि हम परमात्मा से जाके कैसे मिल जाएंगे, माने कब मिलेंगे, हाँ कैसे होगा ये. अब जब हम समझ रहे हैं सब कुछ एनर्जी है, एंड वी हैव ऑल बीन सेंट हियर टू फुलफिल समथिंग, और वट एवर वी हैव डन टू अंडरस्टैंड समथिंग, वी हैव ऑल बीन सेंट ऑन दिस अर्थ टू लर्न दैट. तो जब तक हम वो सीखेंगे नहीं, हमारा एनर्जी फॉर्म चेंज होता रहेगा. वी रेड दैट यस्टरडे ना, दैट द एनर्जी कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग. The more positivity we give to it, we go to a higher level in the next birth. Okay. Or if we are not giving it that kind of a positivity, we go down the ladder, and again we have to brighten our souls or brighten up our energy and then move on to the next level. तो सब कुछ जब हमारे उतना प्योर 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 होते जाएंगे, तब जाके हम उस परमात्मा से मिलेंगे. या सो वी आर बेसिकली ऑल कनेक्टेड. वी आर जस्ट मे बी डिफरेंट लेवल. अभी आपको पता है व्हाइट लाइट होती है, एक येलो लाइट होती है, एक वार्म लाइट होती है. एवरीवन नोज दिस. तो अभी आप सोचिए हमारी ब्राइटनेस कितनी है उस परमात्मा जितनी है, कि कुछ व्हाइट शेड्स में है, कि कोई येलो शेड्स में है, कि ऑरेंज शेड्स में है. तो अगर हम लोग ऐसे ही सोचें तो यही सोच सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो ये सब उस एनर्जी के कलर्स ही हैं. यस. सो इफ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दैट हमको अपने आप को और प्योर करते जाना है, हमारी हमारी ब्राइटनेस को और स्ट्रॉन्ग करते जाना है. दैट इज द टाइम व्हेन वी विल रीच द यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर. ओके. तो हम सब कुछ एक ही हैं, हम लोग सब जन एक ही हैं. तो आप देखिए ये सारी चीजें, ऐसा लग रहा है दिस होल चैप्टर इज अबाउट गीता. हाँ. और आप दोज हु हैव डन द पावर बुक, उनको भी यही लगेगा कि लास्ट के जो चैप्टर्स थे दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट आवर कल्चर हैज बीन टेलिंग अस, एंड दिस chapter and the next chapter also is mostly like this. Okay. So we are all connected, we are all part of the one energy field. आप उसको energy field बोलिए, और the supreme mind, और the one consciousness, और the one creative source. माने आप उसको कुछ भी बोलिए, कोई भी हो, वो हर जन दूसरे दूसरे तरीके से बोलेगा, बट अल्टीमेटली वही है दैट वी आर ऑल, क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, आप ऐसे भी बोल सकते हो. ठीक है. दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन बिग कार्पेट, वन बिग स्काई. जो भी बोलना है, हम सब एक ही हैं. ओके. तो आप जो भी बोलिए, वेदर इट इज आउट देयर या आपके अंदर है, जो कुछ भी है, दे आर ऑल कनेक्टेड बाय दिस एनर्जी. या प्लीज रीड. If you think about the law of attraction now, in terms of us all being one, you will see it's absolutely perfection. You will understand why your negative thoughts about someone else will return to harm only you. We are one. You cannot be harmed unless you call harm into existence by emitting those negative thoughts and feelings.
You have been given free will be chosen, but when you think negative thoughts and have negative feelings, you are separating yourself from the one and all good. Think about every negative emotions there is, and you will discover that every one of them is based in fear. They come from thoughts of separations and from being yourself as separate from another. Yeah, they come from thoughts of separation and from seeing yourself as separate from another. अगर हम लोग उसको शुरू से पढ़ते हैं, अगर आप देखिए ये कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, ओके, किसके बारे में आते हैं जनरली? अगर हम लोग नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करें, आपको जेलसी होती है तो आपको किससे होती है? किसी और से ही हो रही होती है, माने किसी और बॉडी से हो रही होती है. लाइक इफ वी जस्ट से दैट आई एम वन बॉडी, ओके, जस्ट टू कीप इट इन सिंपल टर्म्स, आई एम वन बॉडी, मेरे को एक जेलसी हो रही है किसी और बॉडी से, ठीक है. मेरे को अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी और से हो रहा है. अभी हम लोग बाहर वाले पर्सन के बारे में बात करते हैं, अपने से गुस्सा आ रहा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या मे बी नेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे. तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे वाले जन के लिए मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो रॉन्डा बर्न कह रही है इट विल ओनली हार्म यू. क्यों? बिकॉज आप जो सामने वाले के लिए गुस्सा कर रहे हो या जेलसी कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? उसी एनर्जी के एक पार्ट के लिए कर रहे हो. जिस एनर्जी के हम बने हैं उसी एनर्जी का वो भी बना है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम उसी एनर्जी को हार्म कर रहे हैं जो मेरे अंदर भी है, ठीक है. सो दैट इज वाई जो हम एमिट कर रहे हैं वो मेरे को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है. अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए कि जो हम देते हैं हमारे लाइफ में वही आता है. लाइक व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, दैट इज व्हाट यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग, ठीक है. अगर आप इसको ऐसे सोचना चाहते हैं तो ऐसे सोच सकते हैं. अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि वो एनर्जी सब एक है, हम उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो जिस एनर्जी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं वही एनर्जी मेरे अंदर भी है, तो वो उसको भी उतना ही अफेक्ट करेगी जितना हमको अफेक्ट कर रही है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. नाउ यू हैव बीन गिवन फ्री विल टू चूज. ओके, हमको सबको हर दिन हर सेकंड चॉइस होती है कि हमको किस पे एक्ट करना है. किस पे एक्ट करना मतलब जो थॉट आ रहा है, डू आई वांट टू लिंगर इन इट, ओके, डू आई वांट टू हैव अ प्रोलॉन्ग फीलिंग अबाउट दैट थॉट. तो ये चॉइस हमारे पास है कि हम क्या देख रहे हैं. ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली है, कि पॉजिटिविटी है कि परफेक्शन है, कि हमको वो हनी बी बनना है कि वो हमको फ्लाई बनना है. ये चॉइस हमेशा हमारे पास है, ठीक है. यू हैव बीन गिवन फ्री विल टू चूज. तो आप सोचिए हमको क्या चूज करना है कि जो नेगेटिव थॉट आ रहा है जिससे आपको ही हार्म होने वाला है, आपको उसी में कंटिन्यू करना है या आपको अपना वो थॉट चेंज करना है, ठीक है. बिकॉज जब हम नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, ठीक है. सो ईच थिंग दैट वी हैव बीन रीडिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो आप देखिए यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, आप जो भी नेगेटिव सोचो इट इज गोइंग टू हार्म यू ओनली, ठीक है. तो और ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं दे आर ऑल बेस्ड इन फियर. वो क्या फियर है, वो क्या चीज है? इट कम्स फ्रॉम द थॉट्स ऑफ सेपरेशन. क्या सेपरेशन? कि वो इंसान अलग है, हम अलग हैं, ठीक है. जब हम ऐसा सोचते हैं तभी ये सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं. आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छे थॉट सोचते हो, है ना, बिकॉज यू थिंक दे आर यू. आप ऐसे ही सोचते हैं. उसको हम लोग थोड़ा और बड़ा करते हैं. अगर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में अच्छा सोचते हो तो आप उनको भी यही सोचते हो कि दे आर यू, कि सबके संग अच्छा हो. और इसको हम लोग आगे ले जाते हैं. इफ यू फील कि यस आईपीएल का मैच होता है तो कैलकाटा जीतनी चाहिए, देन यू फील नो आई एम फ्रॉम कैलकाटा, कैलकाटा जीतनी चाहिए, या सो देन यू आर इंक्लूडिंग. तो वो सेपरेशन नहीं है, दे आर इंक्लूजन. माने लाइक यू थिंक दैट यस दिस इज ऑल मी. आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड कुछ भी ऐसा सोचते हो तो आप सोचते हो कि ये हम हैं, ठीक है. तो जब आप उन सबको एक सोचते हो तब आप पॉजिटिव थॉट सोच रहे होते हैं. जब आप उनको सेपरेशन सोचो, लाइक दे आर सेपरेट फ्रॉम यू, दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स. सो इज दिस ओके? आप इन सबको जब एक एनर्जी समझते हो, अपना समझते हो, तब आप उन सब के बारे में पॉजिटिव सोचते हो और वो आपको भी हेल्प करता है. ओके, सो लेट्स रीड व्हाट आर दीज थॉट्स ऑफ सेपरेशन. या Competition is an example of separation. First, when you have thoughts of competition, it is coming from a lack mentality. As you are saying, there is a limited supply. You are saying there is not enough for everybody. So we have to compete and fight to get things. When you compete, you can never win, even if you think you won.
by the law of attraction, as you compete, you will attract many people and circumstances to compete against you in every single aspect of your life. And in the end, you will lose. We are all one. And so when you compete against you. You have to get competition out of your mind and become a creative mind. Focus only on your dreams, your visions, and take all competitions out of the equation. या तो अगर हम सोचते हैं, आपने तो सोचा अरे इस सेल में जल्दी पहुंच जाते हैं, हाँ, वरना वो सामान मेरे लिए नहीं मिलेगा, राइट? तो हम यही सोचते हैं ना कि अरे मुझे मिल जाए, उसको नहीं मिले, हाँ। तो अब रॉन्डा बर्न हमसे यही कह रही है। ये कब होता है? जब हम सोचते हैं नहीं बस उतने ही पीस हैं, 10 ही पीस हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है। नहीं, आपके लिए जो पीस है, माय मॉम हैज ऑलवेज बीन टेलिंग मी, नो, बोले मम्मा जल्दी चलो, सेल में मेरे साइज का नाप नहीं मिलेगा। मम्मा देखो, जो तुम्हारे लिए होगा ना वो वहीं रखा रहेगा, कोई उसको नहीं लेके जाएगा। आई डोंट नो व्हाई शी यूज्ड टू टेल मी दिस, सिंस चाइल्डहुड आई हैव हर्ड दिस, ओके। जो तुम्हारे लिए है वो तुमको ही मिलेगा, और आज भी वो यही बोलती हैं। तो नाउ यू नो इनिशियली आई वुड बी वेरी ग्रम्पी की व्हाट इज दिस, कैसे रखा रहेगा, कैसे, ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब ना। अब हम वो बोलती है ना, तो तुम्हारे, नाउ आई एम कूल, नाउ आई डोंट रश एंड गो टू द एग्जीबिशन सबसे पहले कि नहीं मेरे को ही चाहिए, डिस्काउंट में भी सबसे पहले नहीं। आता है मन में थॉट, आई एम नॉट सेइंग नहीं आता है, बट नाउ आई नो जो भी हम जाके पहले से देखेंगे ना, और हम 2 दिन बाद भी जाके देखेंगे, तो मेरे लिए जो होगा वो मेरे को मिलेगा। ओके, नाउ आई बिलीव इन दिस कि जो भी साइज आए, कुछ भी हो, जो मेरे लिए पीस होगा वो मेरे को ही मिलेगा। ओके, सो नाउ दिस अगेन व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि क्या कि कोई लिमिटेड सप्लाई है, इसीलिए हमको पहले से जाके सोच लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आपको जो चाहिए, ठीक है, आई माइट लाइक अ ब्राउनी, ओके, you might like a chocolava cake, I might like a warm brownie, you might say nahi brownie ke upar ice cream must hai, so everyone has a different choice। Okay, now I'm talking about brownie because today I had a chocolate pastry, okay, so choco excess cake I had, huh? I shared it with my niece, so I barely managed to eat properly because she was not sharing। Okay, so then I can say limited supply thi, okay, huh? But then again I should have ordered two when I know and I'm meeting with the niece, तो मेरे को कितना मिलेगा, yeah, so there is always an excess, ऑलवेज, माने जिसके लिए जो है वो हमेशा से ही है। अब ये रॉन्डा बर्न कह रही है, इफ वी आर कंपीटिंग, तो जब हम कंपीट कर रहे हैं और अगर हम जीत भी जाते हैं, तो क्या हुआ, जब हम कंपीट कर रहे थे तब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमको और ऐसे कंपटीशन वाली चीजें मिलेंगी। और कंपटीशन में आप सोचो, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आती है ना। आपको लगता है नहीं वो नहीं जीत जाए, हमको ही जीतना है। सो देयर आर मेनी फीलिंग्स विच आर देयर विच आर ऑफ बिलो द लाइन। हाँ, तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, एंड शी इज टेलिंग अस, एंड इन द एंड यू विल लूज। आप चाहे जो भी कर लो, इन द एंड यू विल लूज, माने हो सकता है आप वो कंपटीशन जीत गए हो, लेकिन अगर वो वैसी स्ट्रीक रहेगी, वैसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो आगे चल के वी आर गोइंग टू लूज। ओके, वी हैव टू गेट कंपटीशन आउट ऑफ आवर माइंड। हमको सिर्फ फोकस करना है कि हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वो ही हमको मिलेगा। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट, दैट इफ यू आर गोइंग टू द मॉल, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू द सेल और एन एग्जीबिशन और अ डिस्काउंट स्टोर, आपको ये सोचना है मुझे जो चाहिए वो तो मेरे को मिल गया है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट। ओके, फोकस ओनली ऑन योर ड्रीम्स, योर विजन्स, एंड टेक आउट ऑल कॉम्पिटिशंस, यू नो, टेक देम आउट ऑफ द इक्वेशन। आप सोचिए ना, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, सोचिए नहीं, मतलब आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, एंड अगर हम ऐसा सोचे अरे ये सारे प्रोजेक्ट उसको मिल जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तब क्या होगा, आई विल ओनली थिंक अबाउट, यू नो, कि मुझे नहीं मिल रहा है, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट लैक। अगर हम ये सोचें कि अरे कैलकाटा में तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतनी न्यू बिल्डिंग्स आ रही हैं, इतने सारे लोग अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे को तो काम हमेशा ही मिलेगा। आपको क्या लगता है 1 या 10 डिजाइनर पूरे कैलकाटा का काम कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, नहीं बीच बीच में लगा भी होगा कि अरे मेरे को काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं, बट टच वुड, आई एम टेलिंग यू, आई हैव ऑलवेज हैड साइट्स, ऑलवेज। और ये भी नहीं कि एक साइट चल रही हो, 3-4 साइट्स एज पर मी, लाइक I've been working independently for almost now I think 15-18 years, और हमेशा in these past 18 years I've always been blessed with minimum 3 to 4 sites। बीच बीच में ऐसा टाइम आता था 5-6 भी हो जाती थी, हाँ, एंड पीपल, एंड आई हैव अपार्ट फ्रॉम जस्ट वन एडवर्टाइजमेंट इन अ जस्ट डायल, जब वो लोग कॉल करते हैं ना, जब शुरू शुरू में जस्ट डायल आया था, अरे यू हैव टू एडवर्टाइज दिस दैट, तो एक ऐड हमने खाली किया था उस समय। उसके बाद से आई हैव नेवर एवर डन एनी एडवर्टाइजमेंट।
ओके, कि नहीं आई वांट वर्क, या हमने कोई एग्जीबिशन लगाई. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ good thing that I have not done it. I should have done it to get more work. But बिना उसके भी God has been so kind that I've always got work. हाँ, तो हर जन के लिए abundance है यहाँ पे, जिसको जो चाहिए वो है. I do a different kind of work, तो मेरे kind के clients हैं. Some designers do a different kind of work, उनके kind के भी clients हैं वहाँ पे. So there is always abundance. जो competition है वो होती ही नहीं है, वो हमारे सिर्फ मन में होती है कि उसको ना मिल जाए, हमको मिल जाए. जो आपके लिए क्लाइंट है परफेक्ट, वो आपको मिलेगा ही. कितने बार हुए हैं कि मेरे को नहीं मिले हैं प्रोजेक्ट्स, तो माय मॉम इज आई थिंक लाइक बहुत कुछ उन्होंने हमको सिखाया है, या मे बी आपको भी पेरेंट्स ने जब समझाते हैं ना, तो ऐसे ही समझाया होगा. हाँ, कि अरे हो सकता है ना वो क्लाइंट अच्छा ही नहीं हो, तुमको पेमेंट ही नहीं देता, तुम्हारी बहुत फाइटिंग होती, इसीलिए वो तुमको प्रोजेक्ट नहीं मिला. ठीक है, उस समय नहीं समझ में आता था. कितने बार लगता था कि हाँ अम्मा ठीक ही बोल रही है, सुनने में आ रहा है कि ना वो कि क्लाइंट हो ना वो लाइक नॉट सो ग्रेट. तो क्या होता है, हमको सिर्फ हमारे ही जो विजन्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, सिर्फ उस पर ही फोकस रखना है. हम लोग को दूसरे के बारे में जब हम सोचने लगते हैं ना, तो क्या होता है, वी स्टार्ट लूजिंग स्लीप, वी स्टार्ट फीलिंग अनसेटल्ड. और कंपैरिजन जब आ जाता है, उसका तो ये हो गया, उसका तो हो गया, देन वी आर नॉट हैप्पी. नाउ वी नो दिस होल सीन ना, देन वी आर बिलो द लाइन. जब हम बिलो द लाइन है, जिस फ्रीक्वेंसी में है हम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे. या सो वी हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू ओनली फोकस ऑन आवर ड्रीम्स. ये सिर्फ उन सब को वो और एक्सप्लेन कर रही है रॉन्डा बर्न, दैट सो दैट इट गेट्स ड्रिल्ड इन आवर माइंड इन ईच एंड एवरी सेल, कि हम हमेशा अवेयर रहें कि हमको पॉजिटिव जोन में ही रहना है. या प्लीज रीड. The universe is the universal supply and supplier of everything. Everything comes from the universe and is delivered to you through people, circumstances, and events by the law of attraction. Think of the law of attraction as the law of supply. It is the law that enables you to draw from the infinite supply. When you emit the perfect frequency of what you want, the perfect people, circumstances, and events will be attracted to you and delivered. It Yeah, is so not Kushi, are you there? You got your answer? Yes, that if you are only thinking about the law of attraction, if you are only thinking that yes, universe is giving it to you, and when you are emitting the perfect frequency of what you want, माने आपको जो चाहिए आप उसी की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं. वो कैसे एमिट करेंगे? जब आप हैप्पीनेस में है, जब आप गुड फीलिंग्स में, जब आप अबव द लाइन है, देन यू विल अट्रैक्ट दोज पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स, and they will come to you and they will deliver you your dream. Okay, so we have to only focus on this, कि ये यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, they are all working and getting attracted to you depending on the frequency that you means like we are emitting. Yeah, please read. it is not people who are giving you the things you desire. If you hold that false belief, you will experience lack because you are looking at the outside world and people as a supply. The true supply is the invisible field, whether you call that the universe, the supreme mind, God, infinite intelligence, or whatever else. Whenever you receive anything, remember that you attracted it to you by the law of attraction and by being on the frequency and in harmony with the universal supply. The universal intelligence which pervades everything moves people, circumstances, and events to give that thing to you because that is the law. या आप सोचिए कि जो भी मांग रहे हैं, हाँ, तो वो अल्टीमेटली किससे मांग रहे हैं? वो हम भगवान जी से मांग रहे हैं, वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो सुप्रीम पावर से मांग रहे हैं, वो गॉड से मांग रहे हैं. ठीक है, या आपको इन सब में नहीं विश्वास है, तो कोई ना कोई तो एक जो क्रिएटर है, आप उससे मांग रहे हैं. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उनके पास तो अबंडेंस है. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट यू आर आस्किंग फॉर अ फोन फ्रॉम योर पेरेंट्स, or from a jewelry from your in-laws, or from a job from your boss, or from someone. No, ultimately who is the person or who is that power giving it to us? It is the universal power. Okay, it is भगवान जी, it is the intelligence, जो भी वो बोले. तो हमको मांगना किससे, हमको चाहिए किससे? हमको उस सुप्रीम पावर से चाहिए. ठीक है, एंड वो मिलेगा ही, बिकॉज देयर इज अबंडेंस. उन्होंने, आप सोचिए ना, ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, हाँ, राइट फ्रॉम दैट स्मॉल लिटिल एंट टू द डायनासोर, to the elephant, to the sky, water, earth, जो कुछ भी बोलिए सब उस यूनिवर्स, उस सुप्रीम पावर नहीं बनाया. तो उसके पास क्या वो नहीं है जो हमको चाहिए? 100% है. और इट्स नॉट दैट कि हमारे को मिलेगा नहीं. हमको करना क्या है? इफ वी आर इन दैट फ्रीक्वेंसी,
Okay, this is what she's telling us. If we are in that frequency, it will come to us. तो आप जो अपने बॉस से अगर प्रमोशन मांग रहे हो, या अपनी मदर इन लॉ से कुछ मांग रहे हो, या अपने बच्चों से कुछ कह रहे हो, नहीं, हमको सिर्फ किससे मांगना है? जिससे सब मांग रहे हैं, ठीक है? हमको सिर्फ उसी को बोलना है, उसी पे विश्वास रखना है, एंड इट विल कम टू अस. शी इज टेलिंग अस द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस विच परवेड्स एवरीथिंग. हाँ, वो दुनिया, मतलब इट विल मूव एवरीथिंग, सर्कमस्टांसेस टू गेट यू व्हाट यू वांट, बिकॉज वही लॉ है कि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की चीज हमको चाहिए, तो वो हमको मिलेगी, वो मेरे लाइफ में आएगी ही आएगी. ओके, या Lisa Nicholas, we Hmm. often get distracted with this thing called our body and our physical being that just holds your spirit. And your spirit is so big, it fills a room. You are eternal life. You are God manifested in human form, made to perfection. या तो अब रोंडा बन कह रही है, हम लोग, अगर हम लोग ऐसे सोचें कि हम लोग इस ना अगेन दिस बॉडी से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. कैसे? अरे, हम कैसे घर में पैदा हुए हैं, यहाँ पे तो मेरे को कितनी सारी लिमिटेशंस हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमको ये पहनना है, हमको यहाँ पे ये नहीं मिला, हमको ऐसे स्कूल में भेज दिया गया. हम अपने आप को उससे लिमिट कर देते हैं, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज हम भूल जाते हैं कि हमको भगवान जी ने जब यहाँ भेजा, अगेन ईच वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट. यस, ईच वन. ऐसे ही होता ना, आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं, सबकी फिंगरप्रिंट अलग है. तो भगवान जी ने तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, एक फैक्ट्री की तरह नहीं कि सब लोग एकदम डिट्टो एक जैसे हैं. ऐसे भी बना सकते थे वो. हर जन को यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट पर्पस के लिए भेजा है, हर जन को यूनिक बनाया है, ठीक है? तो उन्होंने तो कुछ सोच के भेजा है ना हमको यहाँ पे. बट हम क्या होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे मेरी हाइट ऐसी क्यों है, हम, मेरा कलर ऐसा क्यों है, मेरे हेयर ऐसे क्यों है, मेरी आंखें वैसी क्यों नहीं, दीपिका पादुकोण जैसी, या वट एवर. वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट. वो हमको नहीं होना है. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज आर स्पिरिट. ओके, वो इटर्नल है. आज जो स्पिरिट है उसको मेरे को और ब्राइट करना है, सो दैट इन द नेक्स्ट लाइफ आई रीच अ हायर लेवल. दैट इज व्हाट इज देयर. ओके, हम लोग के अंदर भगवान है. तो लीसा निकोल्स इज टेलिंग अस वी आर गॉड मैनिफेस्टेड इन ह्यूमन फॉर्म. कि माने हम अगर यही सोच रहे हैं कि हम परफेक्शन है, ठीक है, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट वी बिकम ईगो सेंट्रिक, और या हम बहुत ज्यादा हमारा ईगो बढ़ जाए. नो, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट. जैसे हमको भगवान ने बनाया है, वी आर परफेक्ट. We are meant to fulfill a purpose over here, and this body that we have got is perfect for that. ठीक है? तो आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कुछ आपके लाइफ में है, it is totally in your hands, and we have to think that we are here for a purpose. If we have found a purpose, it's just amazing. We just have to keep on walking on that path. अगर मेरे को किसी ने बोला होता ना 1 साल पहले, तुम बिंदास जूम पे सेशन ले रही होगी, इतने जन और ये सब बातें कर रही होगी, बुक समझा रही होगी, किसी को बुक पढ़ रही होगी, उसे पागल है, हो ही नहीं सकता ऐसा. ठीक है, हमको खुद तो समझ में आ जाए, हम जो किसी को समझाएं. व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस बुक, ये वाला चैप्टर पता नहीं हमने कैसे पढ़ा था, ऐसे तो नहीं पढ़ा था जैसे आज पढ़ रहे हैं. ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आश्विन मैम, व्हाट शी टॉट अस, हाउ शी मेड, ऐसा नहीं कि पहले हम पढ़ते थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था. बहुत, आई वाज सपोज्ड टू बी अ पढ़ाकू लड़की इन स्कूल. हाँ, बहुत बुक्स पढ़ते थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे. लाइक जैसे होते ना बच्चे लोग स्कूल में, थोड़े नॉटी भी थे, नॉटी आई डोंट थिंक थे, बट आई यूज टू रीड अ लॉट. और समझ में आ ही जाती थी चीज़ें. अपने आप ही पढ़ते थे. ट्यूशन भी आई थिंक 11-12 के पहले नहीं ली थी हमने. साइंस लिया था तो साइंस में लेना ही पड़ता है ना ट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ली थी हमने भी. और मैथ्स, आई यूज टू लव मैथ्स, एंड इंग्लिश भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था. एंड उस समय भी मेरे को ऐसे नहीं समझ में आया था. क्यों? क्योंकि उस समय ना मेरी आईज खुली नहीं थी. आई डिड नॉट हैव द आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, ये वाला था ना एक तो, नहीं था. तो अब जिस चीज़ का जो टाइम होता है वो उसी समय आता है. हाँ, तो आप भी सोचिए, इसके पहले आपने कभी ऐसे सोचा था हम लोग ऐसे बैठ के बुक पढ़ रहे होंगे, हाँ, एंड समझ रहे होंगे, लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से देख रहे होंगे, लाइफ को नहीं, दूसरे लोगों को, हर चीज़ को एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट द बुक हैज डन टू अस. दिस इज व्हाट Rhonda Byrne has done to us, or maybe this is what we were meant to get now, to understand something in our life. इसलिए ये हमको मिला है. तो हमको हमारे जो अभी की सिचुएशन है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. जब हमारी आंखें खुली हैं, जब हम लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, वही टाइम परफेक्ट है. ओके, सो लेट्स रीड. Michael Burnett Beckwith. Scripturally, we could say that we are the image of the
image and the likeness of God. We could say to are another way that the universe is becoming conscious of itself. We could say that we are वी the कुड से वी पता नहीं ये बुक में ऐसे पीडीएफ में इतना सारा प्रिंटेड ऐसा क्यों वी कुड से वी आर अनदर वे या प्लीज रीड इट अगेन श्वेता सॉरी yeah. We could say we could say to are we are another way that the universe is becoming conscious of itself. We could say that we are the infinite field of unfolding possibility, and of that would be true. 99% of who you are is invisible and untouchable. आर R. Buckminster Buckminster Fuller, Hmm. 1895-1983. यस तो अगर हम लोग जैसे भी हैं जो भी है हम लोग एक भगवान का ही एक रूप है ठीक है हम लोग के थ्रू ही यूनिवर्स हम कुछ कॉन्शियस हम लोग को करना चाह रहा है एंड अपार पॉसिबिलिटीज माने हमको जो चाहिए जैसा चाहिए वो सब हमको मिल जाएगा और सब कुछ सच हो जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन आप देखिए 99% ऑफ हु यू आर इज इनविजिबल एंड अनटचेबल तो अगर आपको आइसबर्ग वाला आपने फोटो देखा होगा वो पिक्चर देखी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही है ना आप क्या सोचते हो आपकी ड्रीम्स क्या है आपकी डिजायर्स क्या है वो आपको देख के कोई बोल सकता है नहीं बोल सकता है वो सब सिर्फ आपके अंदर है जो पॉसिबिलिटीज हैं जैसा भी है दे आर ऑल इनसाइड यू नो वन कैन सी दैट सो दैट इज व्हाट वी आर आवर कॉन्शियसनेस इज लाइक टोटली something else so we have to work on that we only have to keep thinking about our beliefs our systems and everything else will just keep turning out amazingly yeah You are God in a physical body. You are spirit in the flesh. You are eternal light expressing itself as you. You are a cosmic being. You are all power. You are all wisdom. You are all intelligence. You are perfection. You are magnificence. You are the creator. And you are creating the creation of you on this planet. Yes, so see, this paragraph is so amazing. ना? आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं आप मांस नहीं है आत्मा है आप शाश्वत जीवन है जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है आप ब्रह्मांडीय जीव हैं आप समूची शक्ति हैं आप समूचा ज्ञान है आप समूची प्रज्ञा हैं आप पूर्णता हैं आप भव्य हैं आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं ओके सो यू जस्ट फील इट रीड इट अगेन इट्स जस्ट ऑसम इसको हम कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर ओके इट्स लाइक दिस इज द अल्टीमेट आपको जस्ट फील करना है और इसको विश्वास करना है कि यस दिस इज इट या प्लीज रीड James Ray. Every tradition has told you that you were created in the image and likeness of the creative source. That means that you have God potential and power to create your world, and you are. यस तो हर रिलीजन यही बोलता है हर ट्रेडिशन यही बोलता है रिलीजन तो बात का है आप सोचिए ना दुनिया का हर ट्रेडिशन भी यही बोलता है कि हम में ही भगवान है हम ही भगवान जैसी क्वालिटीज ला के अच्छे काम कर सकते हैं ठीक है तो हम में ही वो क्रिएटिव सोर्स है या तो इसका मतलब हमको जो चाहिए वो पावर है हमारे अंदर और जैसा वर्ल्ड चाहिए जैसे लोग चाहिए वी कैन क्रिएट दैट फॉर आवरसेल्व्स या Maybe you have created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you have not. The question I did ask you to consider is, are the results you have in your life what you really want? And are they worthy of you? If they are not worthy of you, then could not now be the right time to change those? Because you have the power to do that. All power is from within and therefore under our control. By Robert Coley. या आप देखिए हमारी लाइफ अभी तक जो भी थी बिकॉज इसके पहले हमको पता ही नहीं था हम सोचते ही नहीं थे कि हम क्रिएटर हैं हम ओरिजिनेटर हैं हमारे लाइफ के हमने सोचा ही नहीं कभी ऐसे है ना तो अब रॉडा बर्न हमसे कह रही हैं थ्रू द वर्ड्स ऑफ जेम्स रे दैट अभी तक हमारी जैसी भी लाइफ थी मे बी इट इज़ वंडरफुल और मे बी इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू माने जैसी भी थी हो सकता है आप कई चीज़ों में अपने लाइफ के बारे में खुश हो और कई चीज़ें आप चाहते हैं कि चेंज करके उसको इम्प्रूव कर लें
या बट अब हमको ये सोचना है कि जो हमारी लाइफ अभी तक है, क्या हमको एक्चुअल में वैसी चाहिए? क्या वो हमारे लायक है या हमारे मुताबिक है, अप टू आवर लेवल है? अगर नहीं है तो हम ही उसको चेंज कर सकते हैं, हम ही उसको हमारे हिसाब से उस लेवल अप में लेके आ सकते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑल द पावर इज फ्रॉम विद इन। जैसे हमने ये फिर से, आई थिंक वो कबीर का है ना, कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, तो इट इज ऑल फ्रॉम विद इन। एंड अगेन वील रिपीट, कौन है हमारे अंदर? those 5 elements. If we start focusing on the 5 elements, if we start appreciating, if we start praising them, keep giving them gratitude, and whatever we want will come to us, because जिससे हम बने हैं उसी से जो हमको चाहिए वो भी उसी से बना है। एंड अगर हम उसको इतना प्रेस करें, उसमें इतना वाइब्रेशन हमारे बॉडी में आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी में हम आ जाएंगे, तो वो डेफिनेटली हमारे लाइफ में मेरे को मिलेगा। ओके, सो लेट्स रीड। You are not your past. Hmm. Jack Canfield. A Hmm. lot of people feel like they are victims in life, and they will often point to past events, perhaps growing up with an abusive parent or in a dysfunctional family. Most physiologists believe, psychologists believe that about 85% of families are dysfunctional. So all of a sudden, you are not so unique. My यस, parents तो were अब जैक कैनफील्ड कह रहे हैं, या जस्ट वन सेकेंड, जब जैक कैनफील्ड इज द वन जिन्होंने ऊपर अपना नोट चिपकाया था अबाउट दैट चिकन सूप बुक, आई थिंक ही इज द वन, या ही इज द वन। तो वो कह रहे हैं हम लोग, नाउ राउंड वन, लेट्स रीड व्हाट इज द टॉपिक, यू आर नॉट योर पास्ट। हमसे कोई पूछता है अपने बारे में बताओ, तो हम क्या बोलते हैं? हम हमारे पास्ट की अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि हम ऐसे थे। हाँ, हम लोग और कैसी टाइप की बातें ज्यादा बताते हैं? अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि नहीं हम वहां गिर गए थे, हमको चोट लग गई थी। रोज खेलते होंगे बचपन में, लेकिन कौन सी बात बताते हैं? एक बार गिरे थे वो बताते हैं। रोज ड्राइविंग करते हैं, लेकिन क्या बात बताते हैं? एक बार एक जन को टक्कर लगा दी थी, वो बात बताते हैं, ठीक है? रोज आपकी सासू माँ आपको इतना अच्छा से प्रेज करती है, एक दिन उन्होंने डांट लगा दी, वो आप बताते हैं। नाउ आई कम टू मी, रोज मम्मा इतना प्यार करती आ रही बचपन से, 2 दिन उन्होंने डांट लगा दी, 2 दिन, हाँ, तो वो बात हमको याद रहती है। व्हाट इज दिस? we think that we are our past, okay? एंड उसमें से भी अपन चूज क्या करते हैं? सिर्फ वो बातें जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं। वो कितनी होती हैं? इतनी सारे लाइफ में, इतने सारे नहीं, इतने सारे ईयर्स में, इतने सारे डेज में, जो 1 या 2 दिन बातें होती हैं हम उनको याद रखते हैं। कई जना बोलोगे नहीं नहीं 1-2 दिन नहीं होती, कम से कम 10 हुई होंगी। इतने सारे दिनों में अगर 10 दिन की बातें हैं तो उसके कंपैरिजन में उसका रेशियो क्या है? उतना सा है, ठीक है? नाउ he is telling us that most psychologists believe that 85% of families are dysfunctional, माने वो अच्छे से नहीं रहती हैं, कॉर्डियल नहीं है, हाँ, और हमको लगता है हम यूनिक हैं। आप सोचिए, he is telling us 85%, तो माने यूनिक कौन हुआ? वो 15% जिनकी फैमिलीज हैप्पी हैं, खुशी से रहते हैं, वो लोग मिलजुल के रहते हैं, और हमको लगता है कि अगर हमको बचपन में पापू ने डांट लगा दी, या हमको मम्मा ने उतने गिफ्ट नहीं दिए, या हमको उतने हग्स नहीं मिले, तो हम यूनिक हैं। हम लोग यही सोचते हैं, हाँ, बट ऐसा नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, जैक कैनफील्ड क्या कह रहे हैं। My parents were alcoholics. My dad abused me. My mother divorced him when I was 6. I mean, that's almost everybody's story is in some form or not. The real question is, what are you going to do now? What do you choose now? Because you can either keep focusing on that, or you can focus on what you want. And when people start focusing on what they want, what they don't want falls away, and what they want expands, and the other part disappears. यस, आप देखिए, जैक कैनफील्ड तो बाहर रहते हैं, तो वहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। आप सुनते होगे जनरली वहाँ पे बहुत जल्दी डिवोर्सेस हो जाते हैं, या हर बहुत ज़्यादा डिवोर्स्ड फैमिलीज होती हैं। लकीली हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। आई मीन जब तक हम बड़े हो रहे थे तब तक तो नहीं था, अभी का सिनेरियो मेरे को नहीं पता। ओके, तो क्या है, उनकी डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। वहाँ पे सबके ऐसे ही होता था कि हाँ पेरेंट्स वर एल्कोहलिक्स, पापा मारते थे, डिवोर्स हो गया, ये था वो था, वहाँ पे ज़्यादा ऐसे था, ठीक है? अब अगर हम लोग हमारे कंट्री में सोचें तो हम ये सोचेंगे, अरे मम्मी मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी,
दादा दादी ने उनको ज्यादा प्यार किया, उनको ज्यादा गिफ्ट दिया, एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरीज। और आप देखो, कोई भी आप दो फ्रेंड्स भी आपस में बात करो ना, आपको लगेगा आप ज्यादा यूनिक हो, नहीं, सबकी सिमिलर स्टोरी होती है। अब हमको क्या देखना है कि हमको फोकस क्या करना है, ठीक है, बिकॉज हमको ये पता है वेर एवर यू फोकस एनर्जी फ्लोज, राइट। हमारा जहाँ अटेंशन जाता है एनर्जी वहीं जाती है, या इफ वी फोकस ऑन थिंग्स दैट वी डिड नॉट लाइक, if we focus on things that we did not want or which we do not want, what will happen, we are expanding that in our life, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में। तो हमको फोकस क्या करना है, हमको उस पे फोकस करना है जो हमको चाहिए, राइट। हमको उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसके बारे में बोलना ही नहीं है, दैट happened in the past which is not up to our liking, okay। जो हमको अच्छा नहीं लगा है हमको उसके बारे में बोलना नहीं। कितने सारे लोग हो सकता है अब्यूज हुआ हो, या हुआ ही होगा, इंडिया में रहते हैं, सड़क में चलते ही कितने लोग टक्कर मार देते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, हुआ कि नहीं होगा। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन दैट a few incidents, or you want to focus on something good that had happened in the past, okay। किसी ने स्कूल में किसी की पिटाई हुई होगी, सीनियर ने मारा होगा, वो हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, रैगिंग हुई होगी, आपको कुछ अच्छी बातें नहीं लगी होंगी, why should we focus on that, we should only focus on things that we want now, see it's a choice। वो वाली बातें करके होगा क्या, उस पास्ट में रह के जो हमको खुशी नहीं दे रहा है होगा क्या, आप किस सेम ही आपके लाइफ में जन है, ठीक है, आप उनको रोज रोज वही बताओगे, थोड़े दिन बाद वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात, दे विल से इसके पास तो एक ही स्टोरी है, जब देखो वो वही बात करती रहती है। तो आप देखिए, हाउ वुड यू बी लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज, आप चाहते हो कि जितने बार आपको कोई फोन करे, बात करे, आप वही बातें करते रहो, नहीं, तो आप खुद को वही बातें क्यों याद दिलाते रहते हैं, है ना। आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा जन होगा जो अपने पास्ट की सेम बात रिपीट करता रहता है, यू वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन ऑफन, टेल मी, नहीं ना, आप चाहते हो नहीं, अरे उसको नहीं फोन करते, वो तो सेम ही स्टोरी रोज रोज सुनाता रहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन-लॉज ने फाइटिंग कर ली, पार्टीशन हो गया, ये हो गया, यही है ना। तो आप खुद को वो बातें क्यों याद दिलाते रहते हैं। एक और रीजन है, आप देखिए, द मोर प्रोमिनेंट रीजन, द मोर obvious reason that we should not be focusing on the past that we don't like, because अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे और उसी में जी रहे होंगे, तो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सैडनेस की, गिल्ट की, जैसा भी पास्ट हो, आपने कुछ भी हुआ हो, आपने कुछ किया हो, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, ऑन द नेगेटिव फीलिंग्स, वी आर ओनली अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स ऑफ दैट frequency which we don't want। The whole point of this book, of all of us being here, is we have to attract what we actually want, है ना। हम लोग यहाँ पे कोई वैसा ग्रुप नहीं है कि अरे अल्कोहलिक ग्रुप है कि सैडनेस ग्रुप है, नहीं, we are here to attract what we want in our life, है ना। यही है हमारा पर्पस, what is our intention of reading this book, that we want to improve our life, yes। So we have to focus on what we want, not on what which we don't want, that happened in the past, yeah। So we have to attract what we want, and for doing that we only have to talk कि हमको चाहिए क्या, हमको पाना क्या है, हमको क्या खुशी देता है, हमको सिर्फ उसी के बारे में बात करना है, yeah। A person who sets his or her mind on the dark side of life, who lives over and over the misfortunes and disappointments of the past, prays for similar misfortunes and disappointments in the future. If you will see nothing but ill luck in the future, you are praying for such ill luck and will surely get it. Prentice Mulford, Okay. प्रेंटिस मलफोर्ड, या। तो अब ये कह रहे हैं, अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को, ओ गॉड, ये दो ठीक है, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, मतलब डार्क साइड, ओके, ठीक है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है, ओके। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा, ओके। सो यू विल डेफिनेटली गेट इट, या, इफ यू आर ओनली थिंकिंग इन योर माइंड about the past events which you have not liked, about the dark side of your life, है ना। हर जन के लाइफ में डार्क साइड कुछ ना कुछ होता ही है, आपने कुछ गलती की, आपसे किसी ने कुछ किया, ठीक है, आपसे कुछ हो गया, आपके फैमिली में कुछ हुआ, समथिंग और द अदर विच यू हैव
built up in your mind. If you are only thinking about that, it could be something misfortunate, it could be a disappointment, और उसी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो कह रहे हैं it is like you are praying for similar things in your life. Is that what you want? अगर आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उसी को रीलिव कर रहे हैं, बार बार उसी की बातें कर रहे हैं. कितने जन होते हैं ना कि फैमिली में, अरे मेरे पास तो इतना कुछ था, इसने ले लिया, उसने ले लिया, उसने मुझे बुद्धू बना के ले लिया, हाँ, इतनी पिटाई की उसने, अगर हम वही बातें कर रहे हैं तो मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग सिमिलर थिंग्स इन आवर लाइफ. वी आर प्रेइंग फॉर दैट एंड वी डोंट वांट दैट. Yes, so now we have to go back in the past and think about the good things that happened. अगर आप पास की कुछ हुआ भी है मिसफॉर्चुनेट, ओके, उसके संग में भी आप बचपन की कुछ अच्छी बातें याद कर सकते हैं. 2 बार सिस्टर ने डांट लगा दी, 10 बार तो बहुत प्यार भी किया आपको, 10 बार क्या 15 बार आपकी इतनी टेक केयर की. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. ओके, इफ यू हैड सम जो भी आपके संग हुआ है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स. हर जन के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है. इट इज़ आर, what is it called, right frame of mind. Now we know what we have to choose. Okay, now we know what we have to talk about. Okay, so we have to focus on what good happened in the past. We have to talk about that. आप कुछ पहले की बातें बोल भी रहे हो, अच्छा ठीक है चलो भूल जाते हैं, वो एफर्ट हमको करना पड़ेगा. If you go back over your life and focus on the difficulties from the past, you are just bringing more difficult circumstances to you now. Let it all go, no matter what it is. Do it for you. If you hold a grudge, grudge or blame someone for something in the past, you are only harming you. You are the only one who can create the life you deserve. As you deliberately focus on what you want, as you being to radiate good feelings, the law of attraction will respond. All you have to do is make a start, and as you do, you will unleash the magic. यस, तो आप देखिए वो यही कह रही हैं कि अगर हम उन्हीं पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ को बार बार सोच रहे हैं, बार बार रीलिव कर रहे हैं अपने अंदर, तो क्या हो रहा है, हम वैसी ही सिचुएशंस, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. वो सेम नहीं, बट समथिंग डिफ़िकल्ट, समथिंग नॉट नाइस. ओके, आपको वैसी लाइफ चाहिए नहीं ना, तो हमको उसको लेट गो करना होगा. कुछ भी हो, जैसा भी हो, वी हैव टू लेट गो. एंड शी इज़ टेलिंग अस डू इट फॉर यू. Okay, and who else can do it for us? No one. Only we have to take that step. Like हमने कितनी बार बात की ना, only we can pee for ourselves, no one else. आपको भूख लगी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पी, आपको भूख लगी है, सिर्फ आप ही खाना खा सकते हो. ठीक है, तो अगर हम किसी और के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, किसी ने कुछ किया उसको रोज कर्स कर रहे हैं, नहीं, हमको उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है. ठीक है, बिकॉज वो नहीं करेंगे तो हम सिर्फ अपने आप को हर्ट कर रहे हैं. या शी इज टेलिंग अस एज यू डेलिबरेटली फोकस ऑन व्हाट यू वांट, माने आपको याद दिलाना है या अपने आप को पूरा टाइम अवेयर रखना है कि यस मेरे को क्या चाहिए, मेरी ड्रीम, मेरे को क्या चाहिए, गुड हेल्थ, मेरे को वो पैसे चाहिए, वो मुझे मिल रहे हैं. वी हैव टू फोकस ऑन दैट. व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दैट वी आर रेडिएटिंग गुड फीलिंग्स, है ना. अगर आपकी जो ड्रीम हॉलीडे, इफ यू थिंकिंग अबाउट इट, या अच्छी फीलिंग्स आती है ना. यस, आप चाहते हो कि आपके बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो रहा है, अच्छी फीलिंग आती है. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम हाउस, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कि यस ये कर्टन का कलर होगा, ये शॉपिंग करेंगे. आपको कोई पार्टी के बारे में सोचो, एनीथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन विच इज गिविंग यू हैप्पीनेस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल रिस्पॉन्ड. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ स्टार्ट. ठीक है, बस इतना सही हमको करना है. हर बार जब पास्ट की कुछ बातें आए विच आर हर्टिंग यू, विच आर टेकिंग यू इन द नेगेटिव जोन, stop it right there. Okay, जैसे बोलते हैं ना, cut the cord, just cut the cord and start focusing on the positive things. ठीक है, and then you will unleash the magic. जैसे ही आप पॉजिटिव जोन में जाना शुरू करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है, पॉजिटिव फीलिंग्स आर ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द नेगेटिव फीलिंग्स. तो हमको जस्ट एक तो चैनल बदलना है, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, एंड विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव्स. या Lisa Nichols, you are the designer of your destiny. You are the author. You write the story. The pen is in your hand, and the outcome is whatever you choose. Yeah. So isn't this wonderful that you are the creator, you are the author,
आप अपनी लाइफ लिख रहे हो, ठीक है? आपके हाथ में वो पेन है, ओके? जैसे नहीं जज के हाथ में वो पेन होता है, मेरे पास वही वाला आ रहा है, अरे वो ऐसे निब तोड़ देते थे, पता नहीं क्यों जज, हाँ? जब भी मौत की सज़ा तो पक्का निब टूटती थी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट सीन? आजकल ये सब वैसे ड्रामेटिक सीन्स नहीं होते ना मूवीज़ में, या? तो आप सोचिए हमको वो पेन लेना है बिना निब तोड़े, वी हैव टू राइट व्हाट वी वांट, ओके? तो हमारे हाथ में वो है कि हमको क्या मिल रहा है लाइफ में, okay? So let's write a nice story, let's write a happy positive story. Yeah. Michael Bernard Beckwith. Hmm. The beautiful thing about the law of attraction is that you can begin where you are and you can begin to think real thinking and you can begin to generate within yourself a feeling tone of harmony and happiness. The law will begin to respond to that. या तो हमको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो हमको चाहिए, ठीक है? हमको सोचना है, हमको उसके बारे में बातें करनी है, हमको उसी जोन में रहना है, और जितना ज़्यादा हम उस गुड पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमीडिएटली वैसे स्टार्ट कर देता है। आपने तो देखा होगा इसको। अब मगर हम लोग ड्रीम की बात तो छोड़िए, आप जब सुबह ही थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करते हो, अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, हैवंट यू सीन दैट योर डे ऑलरेडी स्टार्ट्स हैपनिंग इन अ नाइसर वे, या? और जब आप थोड़ा लो जाते हो, बिलो द लाइन जाते हो, तो क्या होता है, इफ़ यू डोंट चेंज द चैनल, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है। आपने अभी अपने आप की फीलिंग्स चेंज की, अपने थॉट्स को चेंज किया, और तुरंत लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है, या? सो यू जस्ट हैव टू यूज द मूड शिफ्टर्स, थिंक अबाउट समथिंग नाइस, change your feeling, change your channel, and start attracting good things. Okay, so let's read. Dr. Joy Vitale. So now you start to have different beliefs like there is more than enough in the universe, or you have the belief that I am not getting older, I am getting younger. I can create it the way we want it by using the law of attraction. Michael Bernard Beckwith. And you can break yourself free from your hereditary patterns, cultural codes, social beliefs, and prove once and for all that the power within you is greater than the power within the world. यस तो आप देखिए, अब हमको जो भी हमारी बिलीव्स थी पहले की, ठीक है, कि हम जैसा सोचते थे, अरे क्या होता है, पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं हैं, यू नो, कि हम तो मोटे होंगे ही, मेरी मम्मी भी हेल्दी हैं, पापा भी हेल्दी हैं, हमको तो थायराइड होगा ही, अर्थराइटिस होगा, जो भी बिलीफ सिस्टम था, ठीक है, या कमी है, यू नो, सबको पूरा नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आओ, पानी की बॉटल्स ले आओ, यू नो, पता नहीं सनलाइट कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जैसी भी हमारी बिलीफ सिस्टम थी, तो आपको नहीं लगता है वो सब एकदम बुद्धू टाइप की बातें थी? बिकॉज देयर इज अबंडेंस इन द यूनिवर्स। हम सोच रहे हैं कि हम हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे ही, है ना? आप सोचिए ना, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हर चीज़ की। हाँ, तो हमको जो चाहिए हमको वैसा ही सोचना स्टार्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि येस यू हैव फ्लॉलेस नहीं बोलना, यू हैव अमेजिंग क्लियर स्किन, स्मूथ स्किन, आपकी वैसी ही होगी। दैट योर अमेजिंग थिक शाइनी हेयर, वैसे ही होंगे। दैट योर चिल्ड्रन लव यू। अगर आपने बागबान नहीं देखी है या उसको देख के अप्रिशिएट किया है तो बस उसको बंद कर दीजिए और सिर्फ कॉमेडी नाइट्स देखिए, ठीक है? आप जैसा सोचेंगे हम लोग बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है? सो दैट इज़ द पावर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या? एंड व्हेन वी ब्रेक आवरसेल्फ सी फ्रॉम योर हेरिडिटरी पैटर्न्स, माने जो हमने ऐसे सोच के रखा है कि अरे 40 के बाद तो ये हो गई, मेरे खानदान में सबके यू नो जेनेटिकली हेयर कम है तो मेरे भी होंगे ही नहीं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ही होएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ ऑल इन आवर माइंड। अ सिंगल थॉट कैन चेंज आवर लाइफ, ठीक है? तो हमको वो चेंज करना है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप देखिए ना, कल्चरल कोड, सोशल बिलीफ सब चेंज हो जाएगा। आप आज सोच सकते हैं 100 साल पहले हिंदू मुस्लिम में शादी होती थी, आजकल देखिए सब नॉर्म्स ब्रेक हो रहे हैं, एकदम नॉर्मल बात हो गई है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, अफ्रीकन और यू नो वाइट्स में भी शादी। हु रेड दैट अभी कि 40 ईयर्स पहले, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, आई डोंट नो कहाँ पे, मेरे पास इंस्टा में वो आया था, दैट देयर वाज दिस यू नो अफ्रीकन और उसकी गर्लफ्रेंड होगी वाइट लेडी, अमेरिकन या जो भी थी वो, उसके पेरेंट्स ने उन लोग को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनने दिया था, ठीक है? आफ्टर 40 ईयर्स दे फाउंड ईच अदर एंड दे गॉट मैरिड। सी, उस समय जो भी नॉर्म्स थे दे हैव बीन चेंजिंग, है ना? पहले आप सोच सकते थे कि विमेन ऐसे जाके बाहर कुछ करेंगी, नहीं, उनके थॉट्स चेंज हुए एंड लाइफ चेंज्ड।
पीपल चेंज, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? इट इज़ ऑल चेंजिंग विद द थॉट, इट इज़ ऑल चेंजिंग विद द फीलिंग्स, यस। तो जो भी अपन सोचते थे पहले वो सब कुछ चेंज हो सकता है। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट। और हमको दुनिया का नहीं सोचना है, अभी सिर्फ आपको अपना सोचना है, बिकॉज योर जॉब इज़ यू। आप अपने बारे में सोचोगे, आपकी दुनिया वैसे ही चेंज होती जाएगी। आप अपने बारे में सोचोगे, माने लाइक क्या क्या सोचना क्या है कि हमको चाहिए क्या, मेरी ड्रीम्स क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, और वैसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। सिचुएशंस विल चेंज, people will change to give us our dreams. Yeah. Dr. Fred Alan Wolf. You may be thinking, well, that's very nice, but I cannot do that. Or she won't let me do that. Or he will never let me do that. Or I have not got enough money to do that. Or I am not strong enough to do that. Or I am not rich enough to do that. Or I am not, I am not, I am not, I am not. Every single I am not is a creation. Yes. So this is a wonderful paragraph. ये आप पढ़िए, this is just amazing. ये तो आप सब समझ गए ना। हम लोग यही बोलते हैं, अरे I am not capable of doing that, I am not strong enough, I am not qualified, I am not confident. आप देखिए हम लोग हर चीज़ के बारे में, दिन में आपने कितने बार I am not बोला है? आपने कभी ध्यान दिया है? हाँ, आई एम नॉट तो नहीं, आई एम कितने बार बोला? आई एम टायर्ड, आई एम लेजी, आई एम स्लीपी। हाँ, ठीक है। आई एम तो आई एम नॉट तो जो बोले वो तो बोले ही हैं। और आई एम कितने बार बोला है, कितने नेगेटिव्स के संग जोड़ के बोला है? ओके, लेट्स जस्ट सी The secret. It is a good idea to become aware when you say, I am not, and to think about what you are creating as you say it. A powerful insight shared by Dr. Wolf has been equally documented by all the great teachers with the power of the words I am. When you say I am, the words that follow are summoning creation with the mighty force because you are declaring it to be fact. You are stating it with the certainty. And so immediately after you say, I am tired, or I am broke, or I am sick, I am late, or I am overweight, or I am old, the Jedi says, your wish is my command. या तो अब देखिए, इस पे पूरा रिसर्च किया गया। अब जो हम लोग अफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं या जो भी हम लोग बात करते हैं वो क्या है? आप सोचते हो जो हम सिर्फ आई एम के संग बोल रहे हैं वो पावरफुल है? आई एम नॉट के संग भी जो बोल रहे हैं वो भी उतना ही पावरफुल है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग। जितने बार आपने आई एम नॉट बोला, ठीक है, क्योंकि हमने ये बात की है सबसे शुरू में कि यूनिवर्स को नॉट नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स को दिख रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आप कह रहे हो आई एम नॉट लेजी, ओके, मतलब आप क्या बोल रहे हो? हाँ, आई एम नॉट, जो भी आप बोल रहे हो, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट केपेबल, जो भी बोल रहे हैं वो ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आप कह रहे हो, बेसिकली व्हाट यू आर स्पीकिंग इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। आप क्या कह रहे हो, स्पेशली अपने बारे में, क्योंकि आप खुद असर्ट कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो उसको। तो जितना पावर उसमें होता है और किसी में नहीं होता है। एंड शी इज टेलिंग अस बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग इट टू बी फैक्ट, तो वो डेफिनेटली होगा। द जीनी सेज योर विश इज़ माई कमांड। तो आप अलार्म लगाइए, आप रिमाइंडर रखिए कि जितने बार आपने आई एम नॉट कहा है या आप आई एम कह रहे हो, वो क्या कह रहे हो, ठीक है। आप देखिए ना, उन्होंने कितने अच्छे से लगाए, रीड इट फॉर योर सेल्फ एंड कीप अ चेक ऑन वॉट यू आर सेइंग। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आपने देखा, जब हम लोग ने कितने सारे मूवीज़ में और लाइफ में भी देखा कि गुस्सा आए, चकदे में था, गुस्सा आए तो रुक जाओ, पानी पी लो। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट गर्ल फ्रॉम पंजाब, उसका हम नाम भूल गए क्या था, ठंड रख उसको, फिर वो बोलती थी ना पानी पी लो। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में वो थी ना एक तो, पंजाब से वो जो लड़की थी, जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम। हाँ, तो आप सोचिए ना, जैसे वो बोलते ना कि गुस्से में भी आपको शांति से रह के फिर बोलना है, ऐसे भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा है ना, आई एम सिक, हाँ, आई एम लेट, आई एम ओवरवेट, इतनी सारी बातें हम लोग आराम से बोलते रहते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे बोलते हैं ये सब। हाँ, आई एम टायर्ड, आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस, आई हैव नो एनर्जी, ये सब जो बोलते हैं ना, ये सब कुछ बोलना ही नहीं है, एकदम नहीं बोलना है। क्या बोलना है वो आपको ही देखना, बोलोगे नहीं इसके बदले क्या बोले, नो, दैट वी ईच वन ऑफ अस हैज़ टू डू, ओके। कि हर चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बोल देंगे एक दूसरे के लिए, आप अपना कभी दिमाग ही नहीं लगाओगे,
ठीक है, तो आपको सोचना है कि कैसे आपको क्या बोलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। ये तो आप समझ गए ना कि अपने बारे में नेगेटिव नहीं, अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। ओके, या प्लीज रीड। Knowing this, would not it be a good idea to use the two most powerful words, I am, to your advantage? How about I am receiving every good thing? I am happy, I am abundant, I am healthy, I am love. I am always on time. I am eternal youth. I am filled with energy every single day. यस, लेट्स रीड इट अगेन। ऑल ऑफ यू जो आप लोग म्यूट पे भी हैं, प्लीज आप इसको फिर से पढ़िए। एंड श्वेता आप जोर से पढ़िए हम सबके लिए। यस। From starting the same paragraph. नो, फ्रॉम हियर, आई एम रिसीविंग एवरी गुड थिंग। I am receiving every good thing. I am happy. I am abundant. I am healthy. I am love. I am always on time. I am eternal youth. I am filled with energy every single day. यस, तो अगर आपको रोज सुबह अपने ब्लेसिंग्स के बाद ये पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको पढ़िए और एकदम जोर से पूरे विश्वास के संग एकदम असर्टिव होकर इसको पढ़िए, ठीक है। एंड इसके बाद और भी एक अमेजिंग लाइन आने वाली है। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं, जो हमको चाहिए इसमें नहीं है और मेरे को इससे छोटी लाइन चाहिए, तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। यस, लेट्स रीड। In this book, the master key system, Charles Haanel claims that there is an affirmation that incorporates every single thing any human being can want, and that this affirmation will bring about harmonious conditions to all things. He adds, the reason for this is because the affirmation is in strict accordance with the truth, and when truth appears, every form of error or discord must necessarily disappear. The affirmation is this: I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. एंड या, तो अगर आपको उतनी लंबी लाइंस नहीं बोलनी है, मेरे को तो वो भी बहुत अच्छी लगी थी, तो यू कैन जस्ट रीड दिस। ओके, आप इसको हिंदी में पढ़ें। मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ, ठीक है। सो आप अपने लिए अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए दैट ईदर ऑफ दीज इफ यू से, ओके, विल यू नो। इस लाइन के तो उन्होंने कितना अच्छा कहा है कि ये हर चीज़ के लिए अफर्मेशन है, हर चीज़ के लिए। इट इनकॉर्पोरेट्स एवरी सिंगल थिंग एनी ह्यूमन बीइंग कैन वांट। ओके, एनी ह्यूमन बीइंग। आपको लगता है इससे कुछ, सॉरी क्या हो गया, इससे ज़्यादा हमको कुछ चाहिए? जो भी हमको चाहिए वो सब इसी लाइन के अंदर है। आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। आपको हर के आगे आई एम लगा के अगर और अच्छी फीलिंग आती है तो डू दैट। अगर यही पढ़ के आती है तो डू दैट। Okay, so we'll just read one more paragraph and then we'll continue tomorrow. Yeah. If it sounds like work to drag what you want out of the invisible and into the visible, try this shortcut. See what you want as absolute fact. This will manifest what you want with the speed of light. The second you ask, it is fact in the universal spiritual field, and that field is all that exists. When you conceive something, know it, and that there can be no question about its manifestation. जैसे अपन बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स तुम ये खाओगी, ऑफ कोर्स खाएंगे, तुम जा रही हो, ऑफ कोर्स जाएंगे, तो आप क्यों बोलते हो ऑफ कोर्स? हाँ, बिकॉज आपको पक्का है ना। इट इज़ अ फैक्ट कि ऑफ कोर्स यू विल ईट पुचका, ऑफ कोर्स यू विल गो टू स्कूल, ऑफ कोर्स यू विल गेट अप लेट ऑन अ संडे, या आप ऑफ कोर्स बोलते हो ना। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत मेहनत है, रोज़ विजुअलाइजेशन करो, ये करो, वो करो, बिलीव बनाओ, ये करो, मेरे से नहीं होने वाला इतना काम, ठीक है। खुशी अगेन, इफ़ यू आर देयर प्लीज़ यू कैन से दैट येस ऑफ कोर्स हम जाएंगे उस कॉलेज में, ऑफ कोर्स मेरा फोटोग्राफ छपेगा फॉर्ब्स के पे यू नो कवर में, या आपको वैसे ही बोलना है। यू हैव टू बिलीव इट, दैट इज ए शॉर्टकट। इफ यू फील दैट बिलीविंग एंड टॉकिंग अबाउट इट एज अ फैक्ट इज मोर यू नो डूएबल, डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं, देन वील हैव टू गो थ्रू द लॉन्ग वे, विजुअलाइज, अफर्म, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, बिलीविंग, यू नो, तब हमको वैसे करना है, फीलिंग जोन में रहना है।
और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, एंड इफ यू कैन एक्चुअली डू इट, ओके, दैट एब्सोल्यूट फैक्ट, जो हमको चाहिए, बिल्कुल आप कश्मीर जा रहे हो दिसंबर में स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने, ठीक है, तो आपको वैसे ही सोचना है, ठीक है। सो यू हैव टू कंसीव इट इन योर माइंड, नो इट एज अ फैक्ट, एंड देन देयर कैन बी नो क्वेश्चन कि आपके लाइफ में वो नहीं आए। ओके, सो वील स्टॉप हियर एंड अच्छा एक ये भी पढ़ सकते हैं, आई थिंक इट इज इन अ कंटिन्यूएशन, या नो आई There थिंक अच्छा लेट्स रीड, या There is no limit to what this law can do for you. Dare to believe in your own idol, thinking of the idol as an already accomplished fact. Charles Haanel. या तो वो यही कह रहे हैं कि आपको यही सोचना है कि जो हमको चाहिए वो डेफिनेटली हो चुका है, इट इज ऑलरेडी अ फैक्ट, ओके, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू श्वेता फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। यस, तो आप समझ गए हमको क्या करना है। एक तो यही सोचना कि जो भी मेरे को चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो ऑलरेडी है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ का लैक नहीं, देयर इज अबंडेंस, वो यूनिवर्स हमको देगा। हमको किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखनी ही नहीं है। या इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट कंपटीशन, देन वी आर थिंकिंग दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम देम। जैसे हम लोग अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं कि सबका फ़ायदा हो, जितना ज़्यादा आप सबके बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके में आएगा। आप सोचिए ना, ऐसा होता है कि आप भगवान जी से प्रे कर रहे हो पानी बरसे, तो सिर्फ आपके घर में पानी बरसे ऐसा होता है? नहीं होता है, सभी जगह पानी बरसता है ना, या उस एक एरिया में तो बरसता ही है पानी। तो बिल्कुल वैसे ही होता है, व्हेन वी आर आस्किंग फॉर हैप्पीनेस एंड इफ इट इज हैपनिंग इन एवरी एरिया, देन ओनली इट विल कम टू अस। ओके, सो वी हैव टू थिंक ऑफ एवरीवन एज वन लार्ज फैमिली, इट्स लाइक ऑफ वी आर पार्ट ऑफ दैट वन बिग एनर्जी। या सेकेंड, अब आपको ये बोलना ही नहीं है कि आई एम नॉट आई एम नॉट वाला कौन सा था, भूल ही गया, आई एम नॉट वाला, आई एम नॉट रिच इनफ, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम नॉट यंग इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, ये नहीं बोलना है। और वो जो स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस हैं वो आपको अपने ब्लेसिंग्स के बाद में बोलना है। दे आर जस्ट अमेजिंग, यू विल रीड इट एंड यू विल फील कि वाओ, ये इतने दिन से क्यों, लास्ट चैप्टर में ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप प्लीज़ उसको पढ़िए एंड उसको रोज अपने ब्लेसिंग्स के बाद, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन। या एंड थर्ड इज दैट इफ़ यू फील दैट विजुअलाइजेशन ये वो इतना ज़्यादा लॉन्ग टीडियस प्रोसेस है, जस्ट अफर्म कि यस आपके पास वो है, जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपके पास है। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आइज एंड पे ग्रैटिट्यूड टू द सुप्रीम पावर। Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, the dearest Bhagwan Ji, for giving us this wonderful life. Thank you for this amazing weather. Thank you for the wonderful life that you have given to me. Thank you for showing us this path of gratitude and law of attraction. Thank you for showing me my potential. Thank you for giving my family and my loved ones good health and happiness. Thank you, thank you, thank you. Yes. Yes, and thank you, Shweta ji. Sorry? Yes. You have a sharing, Aditi ji? I can't hear you. Thank you. Okay, thank you, thank you. Yeah. Yes. So any question or sharing? Shweta ji, for us so beautifully. Okay, thank you. Yeah. ओके, आपकी आवाज़ वैसे आ नहीं रही है, आई एम जस्ट सेइंग, हमको लग रहा है आप थैंक यू बोल रहे हो, तो थैंक यू। या ठीक है, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ नाइट। आपको कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज स्विच ऑन। जी, आई हैव अ शेयरिंग। यस, वंडरफुल कविता जी, या बोलिए। या आई विल बी नॉट विजिबल बिकॉज आई एम आउट। ठीक है, जैसे अभी वो आदत हो गया है कि वी टेक अवर मैजिक रॉक एट नाइट एंड देन गो टू बेड। ओके, इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, आई अगेन मींस मैं मेरे पिलो के नीचे रखती हूँ, एंड सुबह उठने के बाद मैं आई टेक इट एंड आई कीप इट इन द कबर्ड। तो आज सुबह क्या हुआ, आई वाज नॉट फाइंडिंग दैट व्हेन आई वोक अप, तो आई गॉट रेस्टलेस कि यार ये किधर चला गया, क्या है। फॉर हाफ एन आवर आई वाज सर्चिंग एवरीवेयर, अंडर माय पिलो, इन द पिलो, आई जस्ट उल्टा पुल्टा भी किया पिलो को, सब दूर से चेक किया, कहीं भी नहीं मिला। गद्दा भी सब दूर से ऊपर नीचे करके देख लिया, कहीं नहीं मिला। I was very restless. मैंने कहा यार कैसे किधर जाएगा, कभी आज तक घुमा नहीं है। Then I went for a bath. While coming, I just gave magnificent outcome, and I was like visualizing कि I found it. When I came out, कपड़े वगैरह सुखाए मैंने, and मेरा मास्क नीचे गिर गया, तो I was just picking it up, तो हाथ मेरा पिलो के ऊपर गया,
एंड मुझे वहां पे फील हुआ कि मैजिक रॉक वहीं पे है. एंड विच वॉज आई डेंट फाइंड. मैंने पिलो को सब दूर से दबा के देख लिया था, उल्टा पुल्टा करके देख लिया, उसके कवर में हाथ डाल के देख लिया, कहीं नहीं मिला था मुझे. एंड व्हेन आई गेव मैग्निफिसेंट आउटकम, within 5 minutes I found it. Yes, yes. So this was an amazing magic. Yes, yes. Actually, हाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो सामने रखी चीज नहीं दिख रही होती और कुछ क्या Yes. करते हो जाता है. So wonderful. Yeah. Yes. Yeah. मैंने पिलो उल्टा पुल्टा करने के बाद में भी नहीं मिला, तो इट वाज रियली लाइक किधर चला गया. आई वाज वेरी रेस्टलेस फॉर दैट. And then you magnificent outcome and वो सामने मिल गया. Yes, but- immediately. Very So that nice. was really a magic. Thank you Yes, so very much. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah, you are doing the gratitude and practice. Yes. Yes. Okay. Thank Chalo. you for sharing. Yes. Yeah. Deepika ji, you also have a question or a sharing? नहीं प्रिया जी, मेरे को शेयर करना था. शुरू में जैसे बोले ना, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है ऐसे. हाँ. तो मैं जैसे मतलब मैं जब छोटी थी, हाई स्कूल में, कॉलेज में थी, तब से मुझे कलकत्ता जाने की बहुत इच्छा थी कि मेरे को कलकत्ता जाना है ऐसा था. तो मैं हमेशा नीलेश को भी बोलती थी शादी करने, मुझे एक बार लेके चलो ना. मेरे को बहुत पता नहीं क्यों मैं इतना सुनी हूँ ना उसके जगह के बारे में कि मेरे को ऐसे बहुत इच्छा होती है कि वहाँ जाऊँ. तो नीलेश बोला ठीक है. तो 3-4 साल पहले हम लोग पुरी गए थे, पुरी भुवनेश्वर. तो मैं उनको बोली कि चलो ना, तो बोलेंगे बहुत लंबा ट्रिप हो जाएगा. अरे बोले चलो ना, कुछ नहीं होता. तो 2-3 दिन के लिए हम लोग गए, जाके वापस आ गए. लेकिन मेरा ऐसे बोलते ना मन नहीं भरा वैसे कि मैं बोली कि नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा. अच्छा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा मन ही नहीं भरा. मुझे लगा कि मेरे को तो और रहना है वहाँ पे. तो फिर ये बोले तुम पागल हो गई हो. तो मैं बोली नहीं, अपने को फिर से जाएंगे, ऐसे थोड़ा लंबा जाएंगे. अच्छा, जैसे वहाँ की लाइफ जैसे लोग रहते हैं, वहाँ के लोग जैसे जीते ना, वैसे जी के अपन फिर आएंगे. तो ये बोले ठीक है. मैं चुपके मन रखने के लिए बोल दिया, दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है. हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ क्या करेंगे जाके. पर अभी जैसे मैं बोली ना, लास्ट में इसमें लिखी थी ड्रीम्स में कि नीलेश के ऑफिस में उनका कुछ था, तो उनका ठीक हो जाए सब कुछ. तो वो उस चक्कर में हम लोगों का ट्रांसफर हो गया कलकत्ता. Wow. That is wonderful news, Deepika ji. हाँ. हाँ, तो मेरे को मतलब, तो हम लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए, हम लोग होंगे मार्च तक शिफ्ट होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि चलो, मेरा जो रहने का मन था वहाँ पे, ये मैंने कभी ड्रीम में नहीं लिखा कि मुझे कलकत्ता रहना है. पर हमेशा मेरे मन में इच्छा रहती थी कि मेरे को वहाँ जाके वहाँ रहना है, जैसे वहाँ के लोग रहते हैं जैसे रहना है. तो ये जैसे हम लोग बोले, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए कि वो अपने आप जो अगर होना होगा ना, तो वो अपने आप ऐसे अपने आप रास्ते बन के वो हो भी जाएगा. भले ही आप लिखो नहीं लिखो, बस आपको हाँ वो चाहिए, वो अंदर से रहना चाहिए. वेरी नाइस दीपिका जी. आप जो इतने सारे केक बना बना के आप फोटो पोस्ट करते हैं ना, वेरी गुड. आप आइए, ठीक है, देन वील हैव. ओके, यस, वंडरफुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस, सी ऐसे ही होता है. ये सब बातें हम लोग कहाँ कर सकते हैं, बोलिए? कहीं कर सकते हैं? इस ग्रुप में, इस लाइक माइंडेड सेशन के अलावा आप कहीं ये बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना. यस. तो जो लोग अभी चुपचाप है ना, कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं है, प्लीज बोला करिए, शेयर किया करिए. बिकॉज द मोर यू टॉक अबाउट द मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, द मोर यू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस और योर थॉट्स अबाउट दिस, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट होगी. किस टाइप की? जो आपको चाहिए, जो आपको एक्चुअल में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कहीं नहीं बात कर सकते हैं, दे विल कम इन टू योर लाइफ. ओके, थैंक यू दीपिका जी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू. ओके, सो यस. Yeah. Thank you, Priya ji. Yeah. Thank you, Sangeeta ji. Congratulations. Yes. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you. You are the creator of your life. Okay. आपने कैसे attract किया? You have to share with everyone. Okay. That what did you write? What did your son write? Okay. कैसे हुआ ये magic? I'm sure everyone wants to listen to that. Priya, since the time I started doing the sessions with you, and I got to know about writing the dreams, my first dream that I'd written was this only. And जो तुलसी ने भी पहले शेयर किया था ना कि आपने ना एग्जैक्ट लिखना चाहिए, तो मैं मेरे ड्रीम्स में IIT मुंबई ही लिख रही थी. That was what I was writing. The first dream वो था. I had not written the stream because stream मुझे नहीं पता था उसको क्या चाहिए, ना ही मैंने सोचा था. स्ट्रीम नहीं लिखा था, बाकी कुछ और डिटेलिंग नहीं की थी. तो वो सब डिटेलिंग पूरा चेंज हुआ जो भी है. बट
the thing that I had written वो exactly वही हुआ, because options हमारे पास थे. First round में ही got IIT मुंबई का एक ऑप्शन जो स्ट्रीम लिया. अभी वो आगे जो भी होगा स्ट्रीम जो भी आए, बट IIT मुंबई इज फिक्स. तो वो जो फर्स्ट ड्रीम था ना, तो एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम आई वेरी वेल रिमेम्बर तुलसी had said कि she was there and कश्मीर एंड नहीं था. yes, so you should write exactly, नहीं तो वो छूट जा. this I realized this time कि हाँ वो exact होना चाहिए, जो हम लिखते exactly वही होता है. so it is amazing and every day वो जो visualization भी मैंने जो आप लोगों के साथ तभी भी शेयर किया था, every day वो visualization में वो first चीज वही आती थी. and I was visualizing going to Mumbai, being there, उसको hostel में छोड़ रहे हैं. everything I used to visualize and things are happening exactly the same way. यस सी दिस इज अमेजिंग. पता है आप लोग जब शेयर करते हो, हम जितना भी बोलते रहे हमको समझ में आ रहा है. शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि किसने क्या बोला, क्या बात आपके दिमाग में सेट हुई, वही होती है आपके लिए वो बात. इसीलिए वो शेयरिंग आती है. ठीक है, आज आपने शेयर किया संगीता जी, आपको पता नहीं है कि कब कौन इसको उसमें से क्या बात लेके उसको अपनी ड्रीम में इम्प्लीमेंट करेगा. आप सोचो ना, तुलसी ने तो अपने कश्मीर की हॉलीडे की थी, बट आपने उसको यूज़ कहाँ किया? IIT मुंबई पे. ठीक है, सो दैट इज़ वाई शेयरिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट. ओके, कि किस में आपको क्लियर होना है, क्या आपको लिखना है. सो थैंक यू संगीता जी फॉर योर शेयरिंग एंड थैंक यू तुलसी फॉर गिविंग, कि उसने शेयर किया और आपके दिमाग में वो बात क्लिक की, आपने उसको फॉलो किया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू योर सन एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ. ओके, so thank you so much for your Thank you sharing so and I'm much. sure you'll have more and more abundance and positivity in your life because you are such a good soul. We cannot just forget कि आप क्या करते थे, कैसे ग्रैटिट्यूड करते थे, कैसे आप लोगों को हेल्प करते हैं. बिकॉज वट एवर यू गिव विल डेफिनेटली कम बैक इन योर लाइफ. किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, वी डोंट नो दैट. अगर हम ऐसे ही सोचे ना कि द्रौपदी, ओके दिस इज नॉट सच अ ग्रेट एग्जाम्पल, बट द्रौपदी के संग ऐसा क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुई, तो हर का सीड पहले 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 होता है. क्यों उसने उसको दुर्योधन को कहा अंधे का बेटा अंधा, रिमेम्बर दैट, कहा ना उसने. Yes. Yes? तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन कब सीड कैसे बोता है और वो किस पावर में कहाँ से घूम के आपके लाइफ में आएगा, वी डोंट नो. ठीक है, तो वैसे ही जो लोग पॉजिटिविटी के सीड सो करते हैं वो कितने पावर से घूम के आएंगे, वी डोंट नो दैट ऑल्सो. इन विच फॉर्म दे आर गोइंग टू कम बैक, वी डोंट नो दैट. तो हम लोग को सिर्फ यही करना है, ग्रैटिट्यूड करते रहना है, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते रहना है. ओके, एंड जहाँ And मौका one more- मिले one more sharing. एक्चुअली मैं अभी सेशंस नहीं कर पा रही हूँ. उसका रीजन वो है कि मेरा एक और ड्रीम था कि मुझे मेरा एक नया कुछ एक काम शुरू करना था. So I'm again very 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 happy to share कि I've started that work. I'm starting a small cafe. अभी क्लाउड किचन स्मॉल स्टार्ट कर रही क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, स्मॉल नहीं बोलना. यू आर स्टार्टिंग अ कैफे, सिंपल. आप हूँ. स्मॉल कहाँ है? देयर इज नथिंग स्मॉल एंड देयर इज नथिंग बिग. ठीक है, इट इज ऑल रिलेटिव. वी नो दैट यू आर स्टार्टिंग एन अमेजिंग कैफे. इट इज गोइंग टू डू वंडरफुल. लाइक मोर मैजिक. संगीता जी, सो हैप्पी. बस उसी वजह से थोड़ा बिजी रह रही हो, तो इवनिंग्स अब मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि इवनिंग में मैं ज्वाइन कर पाऊँ. तो फ्रॉम मंडे आई एम ऑफिशियली स्टार्टिंग. अभी तक थोड़ा वर्किंग में था. एक जगह एक फेयर में लगाया था स्टॉल, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, रिव्यूज बहुत अच्छे आए. सो अगेन वन मोर ड्रीम इज देयर इन द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड. वंडरफुल संगीता जी, Thank सो you. हैप्पी. बट देखिए, सेशन से आना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्रैक्टिसेस करते रहिए, ग्रैटिट्यूड करते रहिए एंड पॉजिटिविटी में रहिए. वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सेशन में आने से जस्ट हमारा रिविजन होता रहता है, हम लोग थोड़ा सा और मिल के, इट्स लाइक आई थिंक वी इंटरैक्ट मोर, शेयर मोर, थोड़ा सा और पॉजिटिविटी बढ़ती है. येस, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, एंड विच यू आर डूइंग एंड विच इज़ वाई यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स. ओके, सो वंडरफुल. आई सो हैप्पी फॉर you. More and more Thank magic. you. Okay. Thank you so much. Wonderful. Yes. Thank you so much. Okay. Yes. Anyone else? Pallavi ji, you also have a sharing? Okay. So happy to see your smile. Yeah. Wonderful. Okay.
So we'll see each other tomorrow, Sangeeta ji, and lots of best wishes. And I'm sure your cafe is going to do wonderfully. Okay. Thank you so You are much. in Thank Nagpur or you. Pune? I just forgot. You are in Nagpur. 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 Yes. Okay. Okay. I'm in Pune. You are. Yes. Yes. Okay. So see you all tomorrow. And yes, keep praising, keep blessing, and just keep focusing on what you are saying about yourself. Okay. So thank Yes. you. Good night. See you all tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. Night. Bye bye.